حزب اللہ سے جنگ بندی کے باوجود لبنان پہ اسرائیلی حملے جاری. آج ہونے والے تازہ اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق. لبنانی شہر دفاع کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹوں میں 28 افراد جاں بحق ہوئے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے نبطیہ، جزائن اور سور سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا. کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا. کئی افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے. ایران کا امریکہ سے اسرائیل کو شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنانے کا مطالبہ. ایران نے حتمی معاہدے کو امریکہ اسرائیل کی سنجیدگی سے مشروط کر دیا. نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں اسرائیل کی جنگی کارروائیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. امریکہ اسرائیل شرائط پر عمل درآمد یقینی بنائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ایران خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا پرتپاک خیر مقدم کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات. دونوں وزرائے داخلہ نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دے دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات. پاکستان ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار مصر کے لیے روانہ. R4 گروپ کے چوتھے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. اسحاق ڈار مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی خصوصی ملاقات کریں گے. سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت. نمائندہ خصوصی سٹیو بٹکوف سوئٹزرلینڈ روانہ. امریکی جریدے ایکزیوس کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق سٹیو بٹکوف ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں شرکت کریں گے. امریکی وزیر خارجہ آئندہ ہفتے مشرق وسطیٰ کا اہم دورہ کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی آج سوئٹزرلینڈ روانگی کا امکان. پاکستان نے سفارتی میدان میں روایتی حریف بھارت کو بری طرح پچھاڑ دیا. مودی سرکار کی ناکام خارجہ پالیسی پر خود بھارت کے اندر ہی سنگین سوالات اٹھنے لگے. امریکی میڈیا ہاؤس فوکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان خطے اور عالمی سطح پر اہم ترین ملک بن کر ابھرا ہے. بھارتی تجزیہ کار کے مطابق دنیا اب امن کے لیے بھارت کی بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. سانحہ نومائی کے کرداروں کو سزائیں. لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ. ATC نے وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا. پروسیکیوشن نے ملزموں کے خلاف 37 گواہان پیش کیے. مقدمے میں PTI رہنماؤں سمیت 22 ملزمان نامزد تھے. ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا. کالعدم ایکشن کمیٹی انتشار پھیلانے کے در پہ ہے. اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس. کشمیری رہنما شاہ غلام قادری نے کہا کالعدم الیکشن کمیٹی کے کارکنوں نے ہسپتالوں پر حملے کیے. انتشار اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر سمجھوتا نہیں ہوگا. سردار عتیق احمد خان نے کہا حکومت پاکستان نے ہر معاملے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. سردار عتیق بولے پاکستان نے دنیا سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ٹال دیا. پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو سامنے رکھ کر حالات معمور پر لائے جائیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا گجرانوالہ میں بین المسالک ہم آہنگی سیمینار سے خطاب. کہا اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی اور کا مسلک چھیڑو نہیں. تقسیم تفریق کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی تشدد اور فتنہ پھیلائے گا تو وہ قانون کی گرفت میں آئے گا.
खाने वाल में इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन इजलास का इनेकाद। मरकजी चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आसाद की शिरकत। अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम भी शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आसाद का कहना था, मुहर्रमुल हराम में अमन भाईचारे की फिजा कायम रखें। शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना हमला। जिला बन्नू में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। डीपीओ यासिर अफरीदी के मुताबिक पहला धमाका बरगंतु में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद से हुआ। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान ही दूसरा धमाका हुआ। पहले धमाके में 5, दूसरे में 2 अफराद जान से गए। लाशें और जख्मी करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। सिक्योरिटी इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला की बन्नू में धमाकों की मजम्मत। बजट में अरकान असम्बली की तजावीज़ शामिल की गई। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खित्ते में जंग के बादल छट गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बजट की तैयारी में मौशी तज्ज़ियाकारों और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $4 अरब से ज़ायद सरे मुबादला पाकिस्तान भेजा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। हुकूमत मुश्किल काटने वाली आवाम को ना भूली। आलमी मार्केट में कमी के बाद बड़ा और फौरी रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 20 पैसे, डीजल 67 रुपए 31 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल 299 रुपए 50 पैसे, डीजल 311 रुपए 47 पैसे लीटर। मिट्टी का तेल 48 रुपए 29 पैसे कमी के बाद 233 रुपए 90 पैसे लीटर। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने असम्बली फ्लोर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बारे बात की थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल सस्ता होने पर अच्छा इकदाम। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किराए में 10% कमी का ऐलान। मुल्तान से लाहौर का किराया 55,000 से कम होकर 50,000 रुपये हो गया। फैसलाबाद का किराया 45,000 से कम होकर 40,000 रुपये हो गया। गुजरावाला कराची जाने के लिए किरायों में भी नुमाया कमी। सदर मिनी गुड्स इमरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन करार दी। महंगाई में तो कमी आया ना है, लेकिन ये एक रिलीफ है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से। मज़ीद भी होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जिस तरीके से ऊपर लेके गए थे उस तरीके से पहली बार नीचे लेकर आए हैं। आम जो आदमी है उसके लिए तो बहुत खुशी है, क्योंकि थोड़े बहुत चलो कम हुआ है। और ये है कि जो गरीब बंदा है वो तो फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छा इकदाम है जी। अवाम की सहूलत के लिए ये पेट्रोल का कम होना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, महंगाई का रोना रोते अवाम के चेहरे खिल उठे। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पाकिस्तानी खुशी से निहाल। बड़ी कमी बेहतरीन अमल करार। कहा, पेट्रोल सस्ता होने से अब घरेलू बजट भी आसानी होगी। घी, चीनी, दाल समेत अशय खुरनोश भी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखने की अपील है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नुमाया कमी। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर न आई। मुसाफिरों से ताहाल किराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, किराए के हवाले से इंतजामिया के साथ मीटिंग है, नए किराए का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ताहाल रज़ाकाराना तौर पर किराया कम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मुल्तान के कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट साउथ पंजाब का कॉन्वोकेशन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, फारिग तहसील तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से आज पाकिस्तान का मकाम बुलंद है। किफायत और इकदाम खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की जुमे की छुट्टी खत्म। पेट्रोल सहूलत बहाल। सरकारी गाड़ियां दोबारा सड़कों पर लाने की इजाजत। दुकानों, तजारती मराकज को जल्द बंद करने की पाबंदी। नए औकात-ए-कार के मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे, शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी, फार्मेसी, अस्पताल, बेकरीज, पेट्रोल पंप को इस्तिस्ना हासिल।
इंतजामिया एलपीजी माफिया को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। सरकारी कीमत 308 रुपए 76 पैसे किलो फरोख्त मुमकिन न हो सकी। सरगोदा की मार्केट में एलपीजी 5 से 520 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मुल्तान में एलपीजी 450 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों पर इजाफी बोझ। इंतजामिया ने कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। एलपीजी डीलर्स का कहना है किराया कम होने पर एलपीजी का रेट भी कम कर देंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। 30 जून तक तमाम सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ। अंडरग्राउंड स्टोरेज, वाटर टैंक में डीस्लेटिंग, वाटर रिचार्ज सिस्टम भी शामिल। सूबे भर में 8,38,555 मैनहोल की जियो टैगिंग मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में 3,000 से ज्यादा मैनहोल्स में नेट मैश लगा दिए गए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के लिए मुतहरिक। मजालिस के मुकामात जुलूस रूट्स को मुस्तकिल साफ रखने का मिशन। इमाम बारगाहों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। आशूरा तक रूट साफ रखे जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट नई अफसर की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब के मावन खसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम शुएब मिर्जा का मियां वाली का दौरा। जलूसों और मजालिस के रास्तों पर सफाई, लाइटिंग और तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अज़ादारों की सहूलत के लिए ठंडे पानी की सबीलें लगाई जाएं। अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम। अक़लियती बरादरी का भी कौमी वसाइल पर बराबर का हक तस्लीम। खानेवाल में अक़लियती तलबा की बेहतर तालीम के लिए मस्बत पेशरफ़। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की तरफ से इमदादी रकम के चेक तक़सीम। डिप्टी कमिश्नर का कहना था तालीम, अक्ल शऊर और तरक्की की राहें खोलती है। कहीं बादल तो कहीं बारिश। जनूबी पंजाब का मौसम हुआ औसम। रहीमिया खान में रात गए बादल जमकर बरसे। बहावलपुर में बादलों का बसेरा, बूंदाबांदी भी हुई। डीजी खान को सलमान, फोर्ट मंडरू में भी गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, बखर, लैया में गर्मी कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्क में जंगली हयात के हवाले से अच्छी खबर। खंजराब नेशनल पार्क में बरसों बाद हिमालयाई ब्राउन बेयर नजर आया। 14,000 फुट की बुलंदी पर नायाब रीछ देखा गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ने वीडियो अपलोड कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों से शायकीन खूब महजूज। ग्रुप सी में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। नाकामी के बावजूद स्कॉटलैंड का इवेंट से 0 खत्म नहीं हुआ। ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से धूल चटा दी। मेगा इवेंट में अमेरिका पहली बार मुसलसल 2 मैचेस जीतने में कामयाब रहा। उधर ईरान ने मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।